Okay, as you have already confirmed that I am audible and my screen is visible. So instead of wasting much time, it's already 9:10. We will start immediate. Okay. So we have already our screen in view. This is where we were. It's properly visible, I hope. And now we will get into the presentation part. So today, this is again the acknowledgement that most of the content is from internet and intention is to propagate and communicate science and scientific thinking to the present world community. Now let's get into this is 15th lecture. Today we will be talking general discussion. We will be covering Maharashtra State Board 7th standard lesson about world of stars. And then details about the constellation part, we will be covering Cassiopeia and the other deep sky objects or Messier objects which are in constellation called Cassiopeia. So what is Cassiopeia? Cassiopeia is Sharmishta. So you have here name Sharmishta. Probably many of you may not be knowing anything beyond that particular special name. Okay, विशेष नाम मुलींचं नाव असतं ना शर्मिष्ठा. So, but beyond that, there are a lot of things, lot of mythology associated with this name. So we will try to get into all mythologies which are connected to some name and constellation of the stars called Cassiopeia. But beforehand, we will just go through what all we have covered as far as the constellation part of sky is concerned in astronomy lecture. We started with Andromeda, then we covered Pegasus, we went to Aquarius, Pisces Austrinus, Grus, Tucana, and then we came back, we covered up Lacerta, then we covered Cepheus, Ursa Minor, then we are about to cover Cassiopeia today. So this is about what all constellations we covered in our class. Now this is what is Cassiopeia. This is, you can say, some W or ulta M, or you can rotate your screen and you will see M. Some people will be very confident that it is M. Some people will be very confident it's a W, depending on in which direction you are observing this constellation in sky. What is important here is whatever is being mentioned there, we will read it out. Cassiopeia is a constellation in the northern sky named after Vane. मतलब वेन का अर्थ होता है यूजलेस, एकदम गई गुजरी रानी थी कैसियोपिया इन ग्रीक mythology, who boasted about her unrivaled beauty. Cassiopeia was one of the 48 constellations listed by the 2nd century Greek astronomer Ptolemy, and it remains one of the 88 modern constellations which were defined in 1922. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1922 में जो 88 कॉन्स्टिलेशन को दुनिया के लिए डेसिग्नेट किया, उनमें से भी एक हिस्सा जो है वो कैसियोपिया थी, जो 2nd सेंचुरी जब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने जब ये मार्केट में, तो तब से लेके अब तक एग्जिस्टेंस में है. इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन. It is easily recognizable due to its distinctive W or M shape formed by 5 bright stars. तो यहाँ लाइन डायग्राम तो नहीं दिखेगा आपको आसमान में, बट इस तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट ब्राइट स्टार्स दिखेंगे, 5, जिनसे ये W बनता है. तो आसमान में ये और किस तरीके से दिखता है, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ. आपको मालूम ही होगा कि लास्ट टाइम जब हमने सेफियस यानी वृषपर्वा की बात की थी, तो दिस इज सेफियस यानी वृषपर्वा. तो इस वृषपर्वा से रिलेटेड मैंने आपको ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरीज बताई, फिर मैंने आपको इंडियन माइथोलॉजी मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति के, हिंदू माइथोलॉजी के जो बहुत सारे इससे जुड़े हुए किस्से हैं वो बताए. फिर भी श्लोक वॉज नॉट प्रेजेंट. So today, during covering of Cassiopeia, we will also again go through that small version of story which is related to Hindu mythology. तो यहाँ ये कैसियोपिया आपको दिखाई गई है. कैसियोपिया एक क्वीन है जो एक थ्रोन पे बैठी है,
और उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके वजह से उन्होंने उनके लिए, उनके फैमिली के लिए और उनके पूरे जो उनका टेरिटरी था उन सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये जो कैसियोपिया है इसके बहुत सारे उपयोग है। एक उपयोग पहले तो हम देखेंगे, जस्ट ग्लांसिंग लुक, बिग डिपर यानी सप्तर्षि। सप्तर्षि में 7 ऋषि है, तो 7 ऋषि बोला तो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो एक है ये वाले, सॉरी, एक है ये वाले भाई साहब। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि वो ठीक से दिखे। तो ये है क्रतु। फिर दूसरे नंबर के है पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीच। ऐसे है 1 2 3 4 5 7। तो ये 7 ऋषि जिस श्रृंखला में बैठे हैं उसमें से अगर हम इस इनके ऊपर ध्यान दें, जिसको मैंने क्रतु और पुलह बोला, यानी मेरठ एंड डुबे, तो उनसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरी वाली तो तिरछी हो गई, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पोल स्टार जो अर्सा माइनर का मेन अल्फा है, पोलारिस, वो दिखेगा। इसी तरीके से हम कैसियोपिया का इस्तेमाल करके भी पोल स्टार ढूंढ सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस है कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन का। तो हमने पढ़ी हुई एक कॉन्स्टलेशन यहाँ दिखाई गई है, दैट इज सेफियस वृषपर्वा, जो भी कंट्रीब्यूट करने वाली है पोल स्टार के फॉर्मेशन के लिए भविष्य में। जैसे हमने बोला था कि ये अगर मैं एक सर्कल पकड़ू इस तरीके का, तो ये सर्कल है जिस दिशा में परांचन गति द्वारा या परांचन गति से नॉर्थ पोल मतलब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव घूमता है। तो ये जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सर्कल है, जिसमें आज अगर हम पोलैरिस पे हैं, नॉर्थ पोल अपना, तो और 3,000 साल बाद वो यहाँ पे होगा, और कुछ साल बाद वो यहाँ पे होगा, फिर कुछ साल बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो तारे हैं वो पोल स्टार बनेंगे। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें ज्यादा हम जाएंगे नहीं। मैं रिवाइज आपका इसलिए करता रहता हूँ ताकि आपके ध्यान में एकदम फिट बैठा रहे। तो आपने देखा, यही चित्र मैंने पीछे दिखाया था कि पोल स्टार ढूंढने में बिग डिपर कैसे मदद करता है। इसमें देखेंगे कि सप्तर्षि कैसे मदद करता है, बट उसके पहले हम देखेंगे सप्तर्षि के बारे में थोड़े ज्यादा विस्तृत यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो पैटर्न में जो अल्फा है वो है अल्फा वो है काफ। दूसरा है निक। अल्फा शेडीड है शायद इसका, मेरे ख्याल से। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड, याद करने दो मुझे। हम्म, अल्फा इज शेडी। ओके, तो ये जो शेडार है मतलब कौन सा वाला, ये जो है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इसका कोई नाम नहीं है। ये आगे के है जिसका नाम रुचाव है और एक का नाम सेगीन है। ये मेन तारे हैं जो कसियोपिया यानी शर्मिष्ठा तारका समूह को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, जानकारी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी। कैसियोपिया जैसे हमने देखा कि नॉर्दर्न स्काई में लोकेटेड है, फ्रॉम द लैटिट्यूड अबव 34 डिग्री नॉर्थ। ये फुल पूरे साल भर विजिबल रहता है। आपने देखा भी होगा कि वो इट इज सो क्लोजर टू द नॉर्दर्न पोल, मतलब जहाँ पे पोलारिस है उसके आसपास वो घूमता रहता है। इन सब ट्रॉपिक्स इट कैन बी सीन एट इट्स क्लियरेस्ट फ्रॉम सितंबर टू नवंबर अर्ली। At low southern tropic latitudes of less than 25 degree southern, it can be seen seasonally low in the north. आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कॉन्स्टिलेशन है, तो नॉर्थ की तरफ जो भी है, नॉर्थ गोलार्ध, उत्तर गोलार्ध में जो भी है उनको बहुत अच्छे से दिखे। एट मैग्नीट्यूड 2.2 जो हमने शेडीर की बात की वो उसका अल्फा है, एंड ब्राइटेस्ट स्टार इन कैसियोपिया ऑब्वियसली। अगर हम यही नक्षत्र के सेंस में बोलते हैं तो उसको हिंदू माइथोलॉजी में योग तारा बोला जाता है।
कभी कभी बिकॉज ऑफ इट्स पर्टिकुलर वेरिएबल नेचर गामा कैसियोपिया जो है उसका मैग्नीट्यूड और अच्छा होके मतलब 1.6 होके वो ये शेडीर जो है इसको आउटस्मार्ट कर जाता है। ओके, तो इससे भी ज्यादा ब्राइट तरीके से वो शाइन करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है कि रीच सेक्शन ऑफ मिल्की वे रन थ्रू कैसियोपिया। इसके लिए आपको एक चित्र दिखाना पड़ेगा थोड़ा आगे। ये है वो चित्र। आप यहाँ कितना देख पा रहे हो मुझे मालूम नहीं, बट आप जूम करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सोचिए मैं भी कुछ बना देता हूँ। सोचिए ये ये और इस तरीके से मैंने कुछ बना। ये कैसियोपिया है। अगर ये कैसियोपिया है तो आप बोलेंगे कि ये जो पोर्शन है ये इतना डेंसली पैक्ड क्यों है स्टार्स की वजह से। तो ये डेंसली पैक्ड इस वजह से है क्योंकि ये मिल्की वे के आर्म का हिस्सा है। यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की जब मैं आपको ये चित्र दिखा रहा था। ये चित्र में वो रिलेवेंस तो दिखता नहीं है, बट मैं बता रहा था कि मिल्की वे का जो एक रीच सेक्शन है उसके थ्रू कैसियोपिया जाता है, या कैसियोपिया मिल्की वे के एक आर्म के रीच सेक्शन से जाती है। और उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे ओपन क्लस्टर, ल्यूमिनियस गैलेक्टिक डिस्क स्टार्स, नेबुला, इतने सारी चीजें दिखती है। इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, बट उसमें जाने के पहले हम जाएंगे स्टोरी में जिसमें बड़ा इंटरेस्ट था पिछली बार श्लोक को। तो इंग्लिश स्टोरी मैंने कवर की थी, बट कोई नए स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मैं फटाफट बोल देता हूँ फास्ट फास्ट। ये जो कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन है बेसिकली ये क्वीन ऑफ इथियोपिया है जिसका राजा था उर्षपर्वा, या मतलब वो तो अपना नाम हो गया तो सेफियस। Cassiopeia was wife of King Cepheus, mother of Princess Andromeda. Cepheus and Cassiopeia were placed next to each other and also alongside there is Andromeda. अभी हो क्या गया ये सब चीज में? She was placed in the sky as a punishment. इसको कैसियोपिया क्यों क्यों किस तरीके से पनिशमेंट है आप समझ रहे हैं? उसको उसके चेयर को बांधा गया है चैन से, और उसको एक सेंटर पॉइंट जो है पोलारिस उसके चक्कर मारने के लिए छोड़ दिया गया। क्या किया उसने ऐसा कि जिसके लिए उनको ये सजा मिली है? उन्होंने अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर करते हुए, समुद्र देवता थे और उनके यहाँ जो समुद्र की परियां थी उन सबका अपमान कर दिया और क्या बोला कि भाई मैं तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। ऑब्वियसली इससे गुस्सा हुए समुद्र देव को खुश करने के लिए जो भाई आसमान में स्वर्ग में जो भी बैठे हुए हैं उनको, ये जो एंड्रोमेडा है जो प्रिंसेस है उनको समुद्र देवता को बहाल करना पड़ा, और उसके लिए उनको वहां पे एक रॉक को जंजीर से बांध के रखा गया। बट समुद्र देवता आने के पहले एक राजपुत्र वहां आया और उनका नाम था, क्या नाम था उनका? पर्सियस। और इस पर्सियस ने ऑब्वियसली एंड्रोमेडा को छुड़ाया और बाद में उनके साथ शादी की। कैसियोपिया हैज बीन वेरियसली पोर्ट्रेट थ्रू history of constellation. In Persia, she was drawn by Sufi as a queen holding a staff with a crescent moon in her right hand. तो अभी हम अगर हिस्ट्री में जाएंगे कि सपोज ग्रीक लोगों ने माइथोलॉजी में इस तरीके से स्टोरीज बनाई, इसके बारे में, पर्सियस के बारे में, सेफियस के बारे में, एंड्रोमेडा के बारे में और कैसियोपिया के बारे में। तो अभी हम सूफी संत की बात कर रहे थे जिसने उसको इमेजिन किया कि क्रेसेंट मून को हाथ में लेते हुए, सॉरी, हाथ में लेते हुए उसने अपने क्राउन में पहन के वो बैठी है। इस तरह इन फ्रांस शी वाज पोर्ट्रेड एज हैविंग मार्बल थ्रोन एंड अ पाम लीफ इन हर लेफ्ट हैंड, होल्डिंग हर रोब इन राइट हैंड। इस तरीके से चाइनीज एस्ट्रोनॉमी में स्टार फॉर्मिंग द कॉन्स्टिलेशन कैसियोपिया आर फाउंड अमंग थ्री एरिया। अभी ये थ्री एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइनीज एस्ट्रोनॉमी में इन थ्री एरियाज का बड़ा महत्व है। Chinese and Indian astronomy and Indian civilization and Chinese civilization are considered to be one of the very old civilization, ancient civilization। तो ये जो तीन एरियाज डिवाइड किए गए, एक है फॉरबिडन इनक्लोजर, एक है ब्लैक टॉर्टाइज ऑफ द नॉर्थ, और एक है व्हाइट टाइगर ऑफ द वेस्ट। अभी भाई ये सब चीज के लिए आपको उनकी फिल्में देखनी पड़ेंगी और उसके लिए चाइनीज भी समझना पड़ेगा। एक बंदा तो है हम में जो थोड़ा जापानीज समझ रहा है और सिखा रहा है लोगों को।
अभी चाइनीज का जिम्मा किसी को लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे उधर से किसी चांगचुंग ची को लाना पड़ेगा। तो आज उसमें नहीं जाएंगे। मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा था कि द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइथोलॉजी एंड रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी is connected to the Chinese civilization, Indian civilization, then Arabic and Greek. इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बट अभी हम इसमें जाएंगे नहीं। जैसे बेबीलोन है, मायान्स है, मेसोपोटामिया है, तो हम उसमें अभी उसमें जाएंगे नहीं। द फिगर कॉल्ड टिंटेड हैंड, ये बहुत जरूरी है इस्लामिक पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अभी हम जिक्र करने वाले हैं मोहम्मद की डॉटर फातिमा का। A figure called tinted hand also appeared in the stars of Cassiopeia in sub-Arab atlases. This is variously represents a woman hand dyed red with henna. मतलब मेहंदी से उसको लाल किया गया हुआ एक हाथ है, और एज वेल एज ब्लडिड हैंड ऑफ मोहम्मद डॉटर फातिमा। तो इस तरीके से भी एक जिक्र कहीं ना कहीं कैसियोपिया का आता है। Another Arab constellation that incorporated the stars of Cassiopeia was the Camel. Its head was composed of Lambda, Kappa, Iota, and Phi Andromeda, and its hump was the Beta Cassiopeia. तो Beta Cassiopeia हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके इस डायग्राम में भी सामने है। बीटा कैसियोपिया मतलब काफ नाम का जो स्टार ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये ओरायन की तरह, सप्तर्षि की तरह बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन है, क्योंकि जिसके तारे इतने ब्राइट है कि वो हमेशा किसी भी माहौल में दिखती ही है। मतलब अभी भी, अभी तो नहीं, अभी तो सेट होने की कतार पे होगी, पर अगर आप जाएंगे तो आपको कैसियोपिया प्रोमिनेंटली दिखी, और उससे आप पोल स्टार भी ढूंढ पाएंगे। So let's come to the detailing of the Cassiopeia constellation. It covers approximately 598.4 square degree of the sky. It ranks approximately 25th constellation in area as far as the 88 constellations are concerned. It is bordered by the Cepheus to the north, west Andromeda to south, and west Perseus, southeast Camelopardalis, and also shares a short border with the Lacerta constellation. और लकीली हमारे ये सारे कॉन्स्टिलेशन पढ़ के हो गए हैं। तो अभी हम आएंगे थोड़े डिटेल्स पे, जो डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन के संबंधित तारों के। अल्फा कैसियोपिया जो है ट्रेडिशनली कॉल्ड शेडार फ्रॉम द अरेबिक अल सद्र, ओके, इज द primary dominates the orange shoot giant magnitude of 2.2, 2 लाइट ईयर्स, ऑलमोस्ट 228 लाइट ईयर्स हमसे वो दूर है, और ल्यूमिनिसिटी इज अराउंड 770 टाइम्स द सन। ओके, वो बहुत बड़ा हो चुका है, और ये बड़ा होना, छोटा होना, ये सब चीजें आज जब 7वीं का हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी वाला चैप्टर, तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, ये जो स्टार है अल्फा कैसियोपिया, जिसको मैंने शेडीर बोला, जिसका नोमेनक्लेचर है, ये इट इज ऑलरेडी सोलर, मतलब बहुत बड़ा हो गया। कूल्ड आफ्टर एग्जॉस्टिंग इट्स कोर हाइड्रोजन, कोर में जो मेन फ्यूल है हाइड्रोजन, वो उसका एग्जॉस्ट हो चुका है। इट्स लाइफ स्पैन इज 100 to 200 मिलियन ईयर्स। अभी बीटा कैसियोपिया, जिसको मैं काफ बोला, इसका मतलब होता है हाथ, मतलब कैसियोपिया की जो इमेज दिखाई उसके हाथ में ये तारा है। इट्स अ व्हाइट ह्यूज स्टार ऑफ मैग्नीट्यूड 2.3, अप्रोक्सीमेटली 55 लाइट ईयर्स हमसे ये दूर है, और इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 1.2 बिलियन ईयर्स तक की है। इसी तरीके से ये जो डेल्टा स्कूटी नाम का एक वेरिएबल स्टार का पैटर्न है, उस तरीके का ये पैटर्न दिखाता है। अभी आप बोलेंगे स्कूटी क्या है, स्कूटी आपकी घर की स्कूटी नहीं है, एक स्कूटम मतलब ढाल नाम का कॉन्स्टिलेशन है। उसमें जो डेल्टा नाम का तारा है वो एक स्पेसिफिक वेरिएबल स्टार है, जिसका पीरियड ऑफ ल्यूमिनोसिटी चेंज एक 2.5 घंटे का है। तो उस तारे के पैटर्न में ये बेटा कैसियोपिया मतलब काफ आता है। इसी तरीके से ये गैमा कैसियोपिया नाम का एक तारा है जो आपने देखा, वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.6 से लेके 2.2 मैग्नीट्यूड का है। डेल्टा कैसियोपिया जो है उसका नाम रुचाब है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, और रुचाब या रुकबात है उसका मीनिंग नी, मतलब वो कैसियोपिया जो दिखाई है राजू, उसके घुटने में उस ये तारा दिखाया गया है।
मैं घुटना बोला था, लोगों की अकल घुटने में होती है, वो मुझे याद है। अल्गोल टाइप, अल्गोल क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये पर्सियस नाम की जो कॉन्स्टिलेशन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, उस कॉन्स्टिलेशन का एक वेरिएबल टाइप का तारा है। तो अल्गोल, माइक बंद रखिए। ओके गुड, गलती से किसी का ऑन। तो ये अल्गोल टाइप जो इक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार है, वो मैक्सिमम ब्राइटनेस 2.7 तक जाता है। इसी तरीके से एक एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन कैसियोपिया का नाम है सेगिन, तकरीबन 20 लाइट ईयर्स दूर है। अभी मैंने आपको बहुत बोर किया, इसको मैं यही रोक देता हूँ। रही हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी, तो हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी फटाफट मैं कवर कर देता हूँ कि देवयानी नाम की एक ऋषि कन्या, मतलब शुक्राचार्य जो ऋषि थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो गुरु थे एक तरीके से दानवों के, और दूसरे एक व्यक्ति थे जो बेसिकली शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा, एक मिनट, जो वृषपर्वा राजा था उनकी कन्या है। तो भाई ये शर्मिष्ठा और ये ऋषि कन्या, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। बट अभी दोस्त रहेंगे तो भी आपस में झगड़े रहते हैं, थोड़ी जेलसी होती है। तो इस जेलसी के चलते, उनके झगड़ों के चलते उनमें इस तरीके से अनबन हो गई कि जब कैसियोपिया से, मतलब कैसियोपिया नहीं, शर्मिष्ठा, हिंदू माइथोलॉजी के नाम बोलने पड़ेंगे, शर्मिष्ठा के साथ जब ययाति नाम के राजपुत्र की शादी हुई, तो दासी के स्वरूप में देवयानी को लेके गए वो। बट बाद में देवयानी के साथ भी उनकी शादी हुई। अभी ये मैं बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताई, जो बड़ा सा एक नॉवेल है जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले। तो ये सिर्फ आपके लिए कि प्रजा कौन सी भी हो, जगह कौन सी भी हो, उसका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड काउंट नहीं होता है, बट स्टोरीज बनती रहती है। और उस स्टोरी से कुछ इथिकल इन्फ्रेंस आप निकाले तो बढ़िया बात है, उसी को एजुकेशन बोलते हैं। बट आप उससे कोई भ्रांति यानी गलत फहमी पालेंगे, तो दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ऐसे आपकी हर साइंस की किताब और हर चैप्टर कहता है, जो हम 7वीं का अगला चैप्टर देखने वाले हैं, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मैप का फोटो है कैसियोपिया का, जो आपको इसलिए मैं हमेशा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन कौन से तारे हैं, फिर उनके लोकेशन कौन से हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये चार्ट में दिखती है, वो ये है, कौन सी है ये मैग्नीट्यूड स्केल है। और इसके साथ अगर आप यहाँ के तारों को कंपेयर करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि काफ और अल्फा तकरीबन 2 पॉइंट के आसपास है। इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ये है M52, ये एक मेसियर ऑब्जेक्ट है। ये M103 एक मेसियर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके के मेसियर ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में अभी फिर से एक बार पढ़ेंगे जब हम आगे जाएंगे। यहाँ और भी कुछ चीज है, ये चीज क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये है M31, मतलब मेसियर ऑब्जेक्ट 31, दैट इज एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो इसमें हम बाद में जाएंगे, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने चित्र आपको दिखाया, दिखाते वक्त छोटा सा डायग्राम भी निकाला। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ से यहाँ कुछ दिख रहा है, और वो क्या है इसके लिए हम जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये भी M31 है। ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो 22 लाख प्रकाश वर्ष अपने से दूर है, 22 से 25 लाख। और नेकेड आई से जब देखोगे तो ऐसा ही कुछ धुंधला पैटर्न आपको दिखेगा। बाइनोकुलर से देखोगे तो यहाँ जैसे दिख रहा है वैसा कुछ दिखेगा, और टेलीस्कोप से देखोगे बड़े वाले तो कैसे दिखेगा, ये दिखाने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ा आगे। और आगे जाके देखेंगे, ये जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ, ये ये अगर बीटा है, ये अगर अल्फा है, ये गामा है, ये सपोज डेल्टा है, ये सब एप्सिलॉन है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये भाई साहब को आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूं, ये मिरैक है। ओके, एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन जब पहली बार हमने देखी तो हमने इसका जिक्र किया था। और अगर मैं बोलूं कि इस पैटर्न में ये जो है, यहाँ से मैंने मिरैक को जोड़ा और 3 हिस्से कर दिए तकरीबन, तो मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, वो मेरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और वो एक्चुअली कैसे दिखती है वो हमने बहुत बार देखा है।
बट आपकी तसल्ली के लिए आप यहाँ एक बार देख सकते हैं। So this is that Andromeda galaxy which is housing approximately 400 billion star system like our one solar system. तो ये है स्टोरी अबाउट एग्जिस्टेंस। अभी जाते हैं हम इसके डीप स्काई ऑब्जेक्ट जिसको हमको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कॉन्स्टेलेशन का कवरेज खत्म नहीं होगा। सो विल गो इनटू द फर्स्ट डीप स्काई ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन, जिसका नाम है IC 289। आईसी का मतलब क्या है? Sir, you are mute. ये जिसने भी किया, आप गलती से यहाँ वहां हाथ मत लगाओ। क्या हो जाता है, काम बीच में खराब हो जाता है। अभी कितनी देर में चुप था? अब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, काफी देर तक। 1 मिनट, 2 मिनट, बापरे, 30 सेकंड। ओके ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या बोला मैं याद नहीं है, आप देख लीजिए। माइक म्यूट था और मैं बोलते क्या मुझे पता नहीं। जिसने भी ये किया ऐसा सब आप करिए मत। अभी हम चलते हैं फिर से। इधर किसी ने आईसी मतलब क्या पूछा? नॉट दैट लॉन्ग। गुड। चलो, द राइट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सिंपल। विल गो बैक टू द स्क्रीन। विल ट्राई टू। हाँ, सो दिस इज आईसी। आईसी इज इंडेक्स कैटलॉग। इंडेक्स कैटलॉग में जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं उसके हिसाब से, एक मिनट, हाँ, जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं उसके हिसाब से एक प्लेनेटरी नेबुला है which is cloud of ionized gas and being pushed out into space by the remnant of star core। अभी ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम चाइल्ड जैसा लगेगा, बट एक चीज तो जरूरी है कि धीरे धीरे ये आपको सब समझ में आने लगे। ओके, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स कैटलॉग में जो ये चीज है, रीच सेक्शन ऑफ मिल्की वे रन थ्रू कैसियोपिया, हमने देखा था। तो यही उसी के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत लिखा है। हम आगे चलते हैं। M52। M52 इज ओपन क्लस्टर। ओपन क्लस्टर मैंने जैसे बोला था, बहुत सारे तारों का जमावड़ा जो एक दूसरे के साथ ग्रेविटी से कनेक्टेड नहीं, तो घूम तो रहे हैं बट ग्रेविटेशनली लॉक नहीं है, या एक दूसरे को पकड़ के घुमा नहीं रहे। तो ये जो चीज है, ये ओपन क्लस्टर आपको दिखाया गया। अप्रोक्सीमेटली 5000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है अपने से इसका। इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5। तो कभी अच्छे स्क्रीन में वो दिख भी सकता है, बाइनोकुलर से वो देखा जा सकता है। एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इट्स साइज इज 13 आर्क मिनट्स इन डायमीटर, बट एक्चुअल साइज 19 लाइट ईयर्स के आसपास है। द क्लस्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मेश्रियर इन 1774। एंड इसमें दो मेन येलो जायंट्स है, 7.77 और 8.22 मैग्नीट्यूड। आगे का ये मैं आपको दिख रहे होंगे, ये सारे ये यहाँ दो चीज जो दिख रही है वो सुपर जायंट्स है, येलो जायंट्स। सॉरी। अभी हम चलते हैं NGC 581। अभी अब पूछेंगे NGC क्या है, तो NGC मतलब न्यू जनरल कैटलॉग। मेसियर ऑब्जेक्ट 103 यहाँ दिखाया गया है। इट इज अगेन ओपन क्लस्टर अप्रोक्सीमेटली 10,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, contains 172 stars and the age of cluster is 25 million years। अभी चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फोटो में, जो आपको देख के ऐसे लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बट है। तो अगर ये ऐसा कुछ है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो आपसे झूठ बात तो बोलूंगा नहीं। तो ये है क्या, ये जानने की कोशिश कर। ये है सुपरनोवा रेमनेंट। तो आज ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैं नई नई इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारी टर्मिनोलॉजी 7वीं के बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि
स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि आपको ये सब पता हो, तो आपके किताब में एकदम खुल के इसका वर्णन दिया हुआ है, जो आज हम सविस्तर पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो कैसियोपिया ए इज द रीजन ऑफ सुपरनोवा रेमनेंट, जिसका चित्र यहाँ पे आपको दिखाया गया, बहुत ही लुभावना दृश्य है, बट स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। It is notable for being the brightest astronomical radio source in the sky. This remnant of Cassiopeia constellation is, अभी यहाँ जो आपको फोटो दिखाया गया है, ये बेसिकली एक स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेटरी से लिया गया। ये जो रेडियो सोर्स है, जो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको डिटेक्ट किया गया इन 1947। द क्लाउड ऑफ मटेरियल इजेक्टेड इन एक्सप्लोशन इज अबाउट लाइट ईयर्स अक्रॉस, मतलब इसकी चौड़ाई जो है 1 लाइट ईयर है। आपकी जानकारी में बढ़ा दूं, अपनी सोलार सिस्टम का डायमीटर भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाइट, एंड इज एक्सपांडिंग एट द रेट ऑफ 4000 to 6000 किलोमीटर पर सेकेंड। आप जब मोटरसाइकिल पे बैठ के हवा हो रहे होते हैं ना, दैट स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 40, 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्लाउड आपको ब्यूटीफुल प्यारा सा दिख रहा है, इसका एक्सपांडिंग जो है वो 4 to 6,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हो रहा है। टेम्परेचर इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन को मारो गोली, इतना पकड़ के चलो कि 15 मिलियन है, तो 15 मिलियन मतलब 5 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट। Explosion occurred at approximately distance of 11,000 years from Earth, and first light of the supernova is believed to have reached us about 300 years ago। मतलब गलती से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद वाले पीरियड में पेशवा लोगों ने कोशिश की होती, तो इसकी पहली किरण दिखती। अभी ये मैं बोल रहा हूँ, ये समझने की क्षमता आप में है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप ये भी लिख सकते। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज पैकमैन। अभी पैकमैन तो आप सब खेलते हो, उसी से ये नाम दिया गया है। ये एनजीसी यानी न्यू जनरल कैटलॉग का ऑब्जेक्ट नंबर है 281। इट इज इन H2 region, large gas cloud in which star formation has recently taken place. It contains large amount of ionized atomic hydrogen, and which is lit by the ultraviolet light of your hot blue star. It has nicknamed the Pac-Man Nebula because of the resemblance to the character from the popular video game. The nebula is 9,500 light years from the Earth, and it was discovered by American astronomer Bernard, okay, in 1883। ये कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन से फाई नाम का जो तारा है, वहां से दिसंबर के आसपास एक मिटियोर शॉवर भी होता है। ओके, थोड़ा स्लो है, एंड एंट्री वेलोसिटी तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर पर सेकेंड की है। शॉवर की पेरेंट बॉडी का अब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। आज हमने क्या पढ़ा ये बताने की और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। हमने आज का स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमी क्लास पढ़ा, और वो था कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, और रिलेटेड माइथोलॉजिकल स्टोरी। अभी बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है, तो मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिलेबस की तरफ। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी बहुत सारे तारों का एक जमावड़ा है, जिसके अंदर उस सारे चीज को पकड़ के रखने वाली क्षमता वाला एक बड़ा सा ब्लैक होल सेंटर में होता है। अभी ये डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अब इतना ही बोल सकते कि बहुत सारे लाखों, करोड़ों, अरबों तारों का एक ग्रुप, जो अपने आप में एक कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर है, वो गैलेक्सी। सो व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गैलेक्सी? आप शुरुआत तो यहाँ से कर सकते हैं। प्लैनेट होते हैं, उनके सैटेलाइट होते हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले एस्ट्रॉइड होते हैं, उनको सबको बांध के रखने वाला तारा होता है, और इन तारे जिनसे बनते हैं वो नेबुलाज होते हैं, और ये तारे जो मरते हैं उसकी वजह से बने हुए प्लानिटरी नेबुला होते हैं, सुपरनोवा होते हैं, हाइपरनोवा। ये सारी चीजें कंपोनेंट है गैलेक्सी का। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब हम 6th स्टैंडर्ड की क्लास ले रहे थे, कि तारे पहले तो अपने सूरज जैसे होते हैं, इस सूरज से जो हट्टे कट्टे मोटे होते हैं थोड़े, और लाल लाल कलर के होते हैं, हम उनको रेड जायंट्स बोलते हैं। और ये रेड जायंट के भी जो बड़े भाई होते हैं मरने के बाद, उनको हम सुपरनोवा बोलते हैं।
इसके अलावा दो तारे एक दूसरे को पकड़ के एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से घुमा रहे, हम उनको बाइनरी बोलते हैं। तीन है तो टर्नरी सिस्टम बोलते हैं। आपको नहीं पता, आपको ये सिखाया नहीं गया मेरी तरफ से, पर बाइनरी सिस्टम तक हमने पढ़ा। और एक टाइप का तारा होता है जो होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम ज्यादा होती है उसके न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण, और उसी के चलते हम उसको वेरिएबल स्टार बोलते हैं। तो इतने टाइप के तारे हमने सिक्स के क्लास में पढ़े। अभी किसी को याद होगा नहीं, कि आपको तो रिवाइज करने की आदत है नहीं। आप चाहते हैं कि मम्मी डैडी आपके लिए रिवाइज कर रहे हैं, तो अभी आपका कुछ नहीं हो सकता ज्यादा। अभी हम चलते हैं एक्चुअल लेक्चर। ये लेटेस्ट रिकॉल में ही चल रहे हैं हम लोग। We have already learned about galaxies and stars as well as the solar system and its different components. Stars are born out of nebula. Nebula is nothing but हाइड्रोजन का बड़ा सा गैस का क्लाउड। Nebula are clouds made up of mainly hydrogen gas and dust particles. The particles in these clouds are attracted towards one another due to the force of gravity. As a result, the cloud contracts and becomes the dense and spherical in shape. अभी यहाँ कुछ सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए कि भाई इन्होंने तो बोल दिया कि पार्टिकल्स इन दिस क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास मैं जहाँ बैठा हूँ उस चेयर के बगल में बड़ा सा बेड है, तो बेड क्या मुझे थोड़ी पकड़ के खींच रहा है? तो भाई दो अगर हवा में डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं तो एक दूसरे को खींचेंगे क्या ऐसे ही पकड़ के? तो ये क्यों और क्या और कैसे बताने की कोशिश कर रहा है, ये समझने का काम आपका है। बट समझने में कुछ तकलीफ है तो सवाल पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी, आपके टीचर की, आपके परिवार के समझ बूझ रखने वाले सदस्यों की है। यही इसी चीज को जीवन में स्कूलिंग बोलते हैं। तो ये जो स्कूलिंग है, इसमें अगर आपको किसी ने बोला कि भाई हाइड्रोजन का बड़ा सा गैस का क्लाउड था, उसमें डस्ट पार्टिकल थे, धीरे धीरे वो एक दूसरे को खींचने लगे, ये जादू टोना हुआ है क्या? तो ये जादू टोना क्या है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस कंडीशन में कैसे काम करता है? फिर धीरे धीरे वो गोला सिकुड़ने लगता है, बनते बनते वो स्फेरिकल बन, चौकोन क्यों नहीं बनता, क्यूब क्यों नहीं बनता? ये आपको अपने आप से पूछना है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। तो भाई धीरे धीरे वो स्फेरिकल शेप लेने लगता है। एट सम टाइम द प्रेशर ऑफ गैस एट द कोर ऑफ द क्लाउड, सॉरी क्लाउड इंक्रीजेस कॉजिंग द टेम्परेचर। अभी ये क्या बात होगी? हम हाथ के ऊपर हाथ घिसते हैं ठंडी में तो गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अभी एक डस्ट पार्टिकल दूसरे डस्ट पार्टिकल के ऊपर घिसेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? ये तो बोल रहे हैं बढ़ेगा। तो एक घिसता है कि बहुत सारे घिसते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, तो जैसे बॉडी बिल्डिंग करने जाने के बाद मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे दिमाग पे जोर डालने से दिमाग भी चुस्त होने लगता है। ओके, तो ये चुस्त होने के लिए यहाँ मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लेते हैं कि प्रेशर बढ़ गया, फिर क्लाउड इंक्रीजिंग, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, धीरे धीरे ट्रेमेंडसली एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अभी भाई ये कहाँ प्रोसेस एनर्जी जनरेशन की ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी? सच स्पेरिकल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड स्टार। तो आप सातवीं कक्षा में है, इस हिसाब से इन्होंने स्टार तैयार कैसे होता है, वो चालू कैसे पड़ता है, मतलब उसमें आग कैसे निर्माण होने लगती है, और धीरे धीरे ये आग एक बड़े से गोले का स्वरूप लेके सूरज की तरह पिछले 4.5 5 अरब साल से आग फेंकते कैसे रहती है, इसका एक बच्चों के लायक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अभी बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ों को कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेक्चर के अंत में मैं चैट बॉक्स में जाऊंगा। तो later processes such as contraction, expansion, rises temperature bring about changes in the nature of the star. These changes occur over a very long period. अभी हम छोटे रहते हैं, एक तकरीबन 2.5 किलो के, 3 किलो के, 4 किलो के। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो 50, कुछ लोग तो खा पी के 100 125 किलो के भी हो जाते हैं। और धीरे धीरे हम बुढ़े होते हो, कुछ लोगों का वेट बढ़ते ही रहता है, कुछ लोगों का थोड़ा कम होता है। इस तरीके से हम में जो शारीरिक बौद्धिक बदलाव आते हैं, इस तरीके से तारे में भी बदल आते रहते हैं। बट ये हमारी तरह एक 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का पीरियड नहीं है। ये लाख, करोड़ और अरब साल का पीरियड है। जैसे हमारा सूरज पैदा हुआ, इसको 4.5 अरब साल हो गया, तो आज वो कहीं तो उम्र के बीच में, यानी मतलब 100 साल जीने वाला आदमी 50 साल में पहुंचे,
तो बीच में पहुंच गया उसके लाइफ स्पैन के। वैसे सूरज 10 अरब साल की जिंदगी में 4.5 5 अरब साल की जिंदगी काट चुका है, यहाँ तक पहुंचा है। तो different forms of the stars at various stages during the life cycle are identified as different type of stars। तो इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। और उसके पहले मैं चैट बॉक्स में जाना चाहूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई लिखिए। फिर एक बार मैं स्पीड में जाने लगा, वॉइस इज ब्रेकिंग। 7 मिनट 12 मिनट 5 10 सेकंड और नॉट लॉन्ग से। हाँ ठीक है। मंगलम मिश्रा लेफ्ट लेफ्ट कितनी बार लिख के आता है। वॉइस इज क्लियर, ओके चलो। तो हम अभी चलते हैं इस इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ, पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस द फॉलोइंग फिगर शोस डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स आफ्टर देयर बर्थ फ्रॉम नेबुला। नेबुला से निर्माण होने के बाद तारा किस तरीके से अपना जीवन क्रम व्यतीत करता है, ये यहाँ लिखा। हाउ एग्जैक्टली लाइफ साइकिल ऑफ एनी स्टार कंटिन्यूज एंड एंड्स, ये लिखा है। तो बहुत सारे तरीके हैं। पहले उन्होंने लिखा कि एक नेब्यूला है मान लीजिए, और इस नेब्यूला से तारा बन गया एक ऑर्डिनरी स्टार। तो ऑर्डिनरी स्टार मतलब टेम्पररी, येलो दिखाया तो येलो मतलब अपने सूरज जैसे। सूरज मतलब अपना सन। ओके, तो ये सूरज जब मरेगा तो मरने के टाइम पे इस तरीके से रेड जायंट स्टार बनेगा। तो आज की डेट आसमान में कौन कौन रेड जायंट स्टार है? जैसे बिटलग्यूस है, और कौन है, एंटेरस है, और कौन है, रोहिणी है। तो ये सब है। रोहिणी मतलब अल्देब्रान जो टॉरस कॉन्स्टिलेशन है। फिर बाद में जाके क्या होगा, वो खुद के सेंटर को वही रखेगा, और जो बाजू का कचरा है उसको छोड़ेगा, और प्लेनेटरी नेबुला जैसे दिखेगा। धीरे धीरे ये नेबुला भाग जाएगा और बचेगा व्हाइट ड्वार्फ जो यहाँ पे आपको दिखाया। क्या दिख रहा है सबको? पकड़ के चलता हूँ कि सबको दिख रहा है। ये एक साइकिल हो। दूसरा क्या है, चलो मान लो कि सूरज से बहुत बड़ा तारा है। ठीक है, एक कुछ मान लेते, कुछ लोग मान लो 5 गुना बड़ा है, कुछ लोग मान लो 10 गुना बड़ा है, कुछ लोग मान लो 20 गुना बड़ा है। तो ये जो मासिव बहुत जायंट तारा है, ये सिर्फ मरने के टाइम पे रेड जायंट स्टार, रेड सुपर जायंट। और सुपर जायंट जब मरेगा तो मरने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे सुपरनोवे रिएक्शन और हाइपरनोवे रिएक्शन। और जब वो मरने की कतार पे होगा, तो मरते वक्त जिस तरीके के मासिव एक्सप्लोजन से, इम्प्लोजन से वो मरेगा सुपरनोवा या हाइपरनोवा से, तो उसके बाद उसके मास यानी वजन यानी उसके साइज, वस्तुमान के मात्रा के अनुसार वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल। अभी इस कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे नहीं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होती है। हम सिर्फ जो अपने लिए जरूरी है उतना ही पढ़ते हैं। तो ओए 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 ओए, क्या हो गया? हाँ, our solar system is a tiny part of galaxy called Milky Way, which is many many times larger than solar system। Obviously, क्योंकि अगर हमारा सूरज एक सन है, स्टार है, तो इस तरीके के 200 बिलियन 200 अरब तारे अपनी सोलर मिल्की वे गैलेक्सी में है। देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी, प्रिसाइजली 200 बिलियन तारे। Some of them being many times bigger than Sun. Some of them have their own planetary systems. Stars in the Milky Way show great diversity in color, brightness, as well as size. Some stars which appear to be close to one another, making particular figure, are together known as constellation। अभी जो बच्चों ने मुझे कभी एस्ट्रोनॉमी पे बोलते हुए सुना, उन्होंने ये हमेशा सुना होगा कि आसमान में जो हमको तारे दिखते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होते। पर हम इंसान अपने दिमाग को जो बेवजह दौड़ाते हैं, और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं कभी कभी कभी, तो इस तरीके से हमने ये ग्रुप ऑफ तारों को नाम दे दिया। और इसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि some stars which appear to be close to one another, making some particular figure which is seen by that particular group of humans, is called constellation। हिंदी में बोले, मराठी में बोलेंगे तो तारका समूह। We shall learn more about this constellation in this chapter, but before that, let us learn a few basic concepts related to sky watching। अभी स्काई वॉचिंग आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे फिफ्थ स्टैंडर्ड से
आपके ऊपर जोर दिया जा रहा है, किताबों में आ रहा है। तो आसमान तो टीचर घर पे आपके लेके आएंगे नहीं, मोदी जी भी नहीं लेके आ सकते। आपका आसमान आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि अभी उधर कोई बुकिंग नहीं हुआ है। ओके। तो आपका आसमान आपको देखना है, और ये आपकी नैतिक और हर तरीके की जिम्मेदारी है। समझाने का काम मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर उसके पहले इन लोगों ने हमारी अच्छी मदद कर दी। आप लोगों को यहाँ जो वेबसाइट बताई है अवकाशवेद.com, इस वेबसाइट पे विजिट करना है। अपने ही यहाँ के महाराष्ट्रियन व्यक्ति है, सचिन पिड़न करके, ऐसा ही कुछ उनका नाम है मेरे ख्याल से। तो उनकी ये वेबसाइट है, बहुत बढ़िया से उन्होंने बनाई है, सेल्फलेसली। ये आप लोगों के बच्चों के भले के लिए बनाई है। वैसे दूसरे www.space.com है। अवकाश वेद की खासियत है कि उसमें मराठी में आपको जानकारी मिलेगी, तो आप जरा प्लीज प्लीज उसको विजिट करिए। किसी ने आपके लिए मेहनत की है, तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना होगा। अब स्काई वॉचिंग के बाद, स्टैंड स्टिल इन ओपन स्पेस, लुक इनटू द डिस्टेंस। अभी आप अगर शांत ऐसे ओपन जगह पे खड़े हो जाएंगे, तो गलती से चींटियां पाँव पे चढ़ जाएंगी, काटेंगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसमें मेरा भी एक सेंटेंस सुन लीजिए। कभी भी कहीं भी खड़े होने के पहले आजू बाजू में अच्छे से देख लेना चाहिए। चींटी काटे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, गलती से कुछ स्नेक वगैरह रहेगा तो प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम स्टार गेजिंग के लिए जाते हैं तो दिन में तो सूरज दिखता है, तो ऑब्वियसली रात को यानी शाम को यानी दिन ढलते वक्त जाना पड़ेगा। तो वो टाइम ऐसा होता है कि नॉकटर्नल स्पेसीज, मतलब जो रात में घूमना फिरना पसंद करते हैं, ऐसे टाइप के जीव जो हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाता है। So you have to take all possible safety precautions, including looking around the place before you stand there for some specific period. What do you notice about the ground and the sky? आप अगर खुली जगह पे खड़े होके कहीं भी दिन में, रात को, दोपहर को, आसमान के उस छोर की तरफ देखोगे जो जमीन की तरफ चिपका हुआ है, मतलब जमीन दूर देखोगे तो जमीन आसमान का कहीं मिलाप होते हुए दिखेगा। स्टिल लुकिंग इनटू द डिस्टेंस, टर्न अराउंड योरसेल्फ। अगर आप दूर देखते हुए खुद के अराउंड एक चक्कर लगाएंगे, तो आपको ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड द स्काई एज यू डू सो। आपको ग्राउंड और स्काई हर साइड में, हर सर्कल के पेरी में चिपका हुआ दिखेगा। Far away, the sky seems to be touching the ground. The line at which they meet is called the horizon. While turning around oneself, the horizon will be seen to form a circle, and on looking up, the sky will appear to be spare based on this circle. The stars and planets moving in the sky appear to be moving on this sphere. This virtual sphere is called as the celestial sphere. The two circular horizon divide. The circular horizon divide this sphere into two halves. एक है ऊपर वाला हिस्सा, एक है नीचे वाला हिस्सा। तो हमने ये पढ़ा कि हॉराइजन मतलब ही मराठी में क्षितिज, क्षितिज रेखा या प्लेन प्रतल, ये जो है वो टचिंग एरिया ऑफ द स्काई टू ग्राउंड इन अ इमेजिनरी वे, एक काल्पनिक तरीके से वो एक दूसरे को टच कर रहा है, ऐसा हम पकड़े तो सब कुछ पृथ्वी के ऊपर और आसपास जो है वो स्पेरिकल और सर्कुलर शेप में ही दिखता है, क्योंकि पृथ्वी खुद स्पेरिकल है। तो उसके कारण हमको ये जो पृथ्वी के ऊपर से आसमान में जिस तरीके का व्यू है, वो एक हेमिस्फेयर है, मतलब आधा कटा हुआ स्पेयर है। और हम पृथ्वी की तरफ नीचे देखें तो नीचे के साइड में भी उसी तरीके का स्पेयर है। बट एक्चुअली वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में हम सबको पता है कि एक स्पेरिकल पृथ्वी के एक तिरछे सरफेस के ऊपर हम हॉरिजॉन्टली खड़े हैं। अभी ये क्या मतलब आप समझे, वो दिखाने के लिए आप जब मेरे से मुलाकात करेंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा था वो समझा दूंगा। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि जेनिथ मतलब क्या। अभी जेनिथ फैन या जेनिथ ट्री जिसकी बात मत करो। जेनिथ, while standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our, हमारे सर के ऊपर जो एग्जैक्टली ऊपर आसमान में पॉइंट है वो जेनिथ है। और जमीन की तरफ पाताल में सोच लीजिए जो पॉइंट है वो है आपका नाभिक। सेलेस्टियल पोल्स क्या है वो समझने के लिए ये फिगर एक बार देख लीजिए। उसके पहले ये पहला देखिए। आपने यहाँ पे देखा
नादिर, जेनिथ, हॉराइजन का प्लेन और लाइन, ये ईस्ट पकड़ी, ये वेस्ट है, तो ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ मुंह करके रहेंगे तो लेफ्ट की तरफ नॉर्थ आएगा और राइट की तरफ साउथ। तो ये जैसे बच्चों ने बचपन से किया है तो उसके ऊपर ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। ये सर्कल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वर्चुअल स्पेयर में यहाँ जो बताया गया है किताब में, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाओ। तो मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। पहले तो आप पकड़िए, उन्होंने यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये जो सर्कुलर है ये पृथ्वी है, ये आप खड़े हो, और ये आपका ऊपर का जेनिथ है, और ये नीचे का नादिर। तो आप बोलेंगे ये क्या है? ये जो है वो सेलेस्टियल नॉर्थ। जबकि आप जब से पढ़ते आए पृथ्वी के बारे में, आप हमेशा देखते आए कि ये जो है, ये नॉर्थ पोल पकड़ू मैं अगर ऑफिशियल नॉर्थ पोल, तो ये जो डिग्री है ये 23.5 डिग्री। यहाँ ये बात नहीं हो रही, ये सेलेस्टियल पोल है ऐसा उन्होंने बताया। तो आपका एक्चुअल नॉर्थ पोल टेम्पररी वो लोग वो दिशा में दिखा रहे हैं, और उस हिसाब से वो सेलेस्टियल पोल्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या डिफाइन कर रही है, देखिए मैं इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? इफ वी एक्सटेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ in the north and south direction, it will penetrate the celestial sphere at points called the celestial north pole and celestial south pole respectively. ये इंक्लूसिव है कि पृथ्वी का एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल से, एक्चुअल वर्टिकल से 23.5 डिग्री झुका हुआ। इसके मद्देनजर ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप दिमाग में पक्का फिट कर लो। तो यहाँ पे 10 बजने आ गए, 10 बज गए। ओके, तो हम इसी जगह पे रुक जाते हैं। आगे का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पन्ने बहुत बड़ा सिलेबस होता है, जो 5-10 मिनट में खत्म करना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा। हम इसको अगली बार करेंगे, बट रुकने के पहले मैं आपको चैट बॉक्स की तरफ लेके चलता हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ, एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट? हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। 10 बजे ही, 9:45 बजे लेक्चर खत्म करना होता है, बट 10 बजे मैं आजकल कर रहा हूँ विद द ओनली इंटरेस्ट कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो। जो पढ़ाया वो थोड़ा फास्ट पढ़ाया, क्योंकि जो दूसरा पैरेलल सेशन चलता है एस्ट्रोनॉमी का, आई हैव डाउट अबाउट जेनिथ। तो पूछो। डाउट अबाउट जेनिथ लिखने से अच्छा सर दिस इज माई डाउट ये लिखना चाहिए। लावड़े, लिखिए आपका डाउट। हाँ चलो, ओके। तो ठीक है, अभी 10 बजे हुए, आसमान में जाके आप सप्तर्षि या फिर कैसियोपिया ढूंढने की कोशिश करिए, मम्मी डैडी के परमिशन के साथ और उनके कंपनी के साथ। ओके। और अरे, आई हैव डाउट अबाउट जेनिथ, क्या डाउट है जेनिथ के बारे में वो तो पूछो, मानसी। बाकी सब लोगों को सब समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्लास बंद करें? आपका एक ऑब्जर्वेशन सेशन हम जरूर करेंगे। वॉइस इज परफेक्ट में ही अभी अटके बोलो। बाय सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय। एक ने तो क्लोज ही कर दिया, बाय बाय, थैंक यू, चलो यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप बी डाउट आ रहे, व्हाट इज जेनिथ? जेनिथ मीन्स हम अगर पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं तो आसमान में हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर जो बिंदु है उसको हम जेनिथ पॉइंट बोलते हैं। इज इट क्लियर गुरुवेश? बाय सर। बाय बाय। इधर लोगों को माइक ऑन करके बाय बोलने में बड़ा मजा आता है। चलो टाटा, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir.
गुड नाइट आ गया भाई मेरे। चलो बाय बाय। चलो। बाय सर, थैंक यू सर। गुड। बाय 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 बाय, थैंक यू। चलो चलो जल्दी जल्दी। Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। चलो, टाटा।